Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is going to be our 8th lecture from Unit 1, that is Computer Systems of Computer Science first year. And the topic we are going to cover is Boolean identities. And the topic number in your textbook is 1.3.3. Let's have a look at the agenda of today's lecture. So the agenda of today's lecture, we will cover Boolean identities, and it's on page number 11 and 12 of your textbook. So let's get started and have a look at the question that basically what is Boolean identity. So to understand this and to answer this, Boolean identities are basically the mathematical expressions, are mathematical equations that holds always true. Mathematical for example, मैं आपको बहुत छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि मैथ्स में आपके पास फॉर्मूला है a plus b whole square, that is equals to a square plus 2ab plus b square, and it holds true for the values of a and b. ठीक है, इसी तरह जो बुलियन आइडेंटिटीज़ होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में या बुलियन अलजेब्रा में, these are basically the mathematical equations. ठीक है, अब ये किस तरह से मैथमेटिकल इक्वेशन है वो मैं आगे फर्दर जो है वो आपको जैसे जैसे लेक्चर प्रोसीड होगा आई विल एक्सप्लेन यू गाइज. अच्छा, अब बुलियन आइडेंटिटीज़ बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं? सो दीज आर बेसिकली यूज्ड फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशंस, one thing, and the other is to analyze digital circuits. तो boolean identities को आप या तो use करते हैं for the simplification of boolean expressions, and the second use is to analyze digital circuits. अभी इसको just आप memorize कर लें इंशाल्लाह. जैसे जैसे ये topic proceed करेगा I'll explain you guys this, because simplification जो है वो आपका I think book में next topic भी है, वो भी मैं explain करूँगी. and जिस तरह से हम analyze करेंगे digital circuits को, वो उसमें भी जो है आई विल एक्सप्लेन फर्दर. जैसे जैसे टॉपिक एडवांस टॉपिक्स की तरफ हम मूव कर रहे हैं, मैं आपको ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वहाँ पे मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करूँगी. फॉर द टाइम बीइंग जस्ट होल्ड ऑन टू दीज 2 points. Okay, if we talk about the Boolean algebra, so Boolean algebra includes 2 things. The first one is the digital logic. You can also say that the binary variables having the digital logics. अब digital logics में जब भी मैं ऑलरेडी इसको प्रीवियसली लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि डिजिटल लॉजिक मीन्स लॉजिक 0 और लॉजिक 1. ठीक है, तो कोई भी फॉर एग्जांपल बाइनरी वेरिएबल्स हैं तो उसमें ज़ाहिर बात है या तो उसमें 1 होगा या फिर उसमें 0 होगा. यही 2 ऑप्शंस हो सकती हैं, इसके अलावा कोई और थर्ड ऑप्शन नहीं होगी. इसके अलावा बेसिकली जो सेकंड वन है बुलियन अलजेब्रा में, दोज आर बेसिकली द लॉजिक ऑपरेशंस. अब लॉजिक ऑपरेशंस में इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द वेरियस लॉजिक गेट्स एंड द लॉजिक ऑपरेशंस. फॉर एग्जांपल्स एंड था, और हमने स्टडी किया नॉट, नैंड, नॉर, एक्सक्लूसिव और वगैरह. ठीक है, so if we summarize this, so we can say that the Boolean identities are basically the mathematical equations that holds always true. ठीक है, और ये किस लिए यूज़ होता है? 2 purposes के लिए, for the simplification of Boolean expressions and to analyze digital circuits. And thirdly जो हमने Boolean algebra की बात की कि Boolean algebra में basically 2 जो है वो आएंगी. The first one is digital logics and the second one is operations, logic operations. ठीक है, जिसमें logic gates involve होंगे. So this is the table. This is the entire table explaining various Boolean identities. आपको उन्होंने उसकी डिस्क्रिप्शन भी दे दी है और जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं वो भी दे दी हैं. सो जो आपका राइट हैंड साइड पे कॉलम है, दीज आर योर Boolean identities and these are the mathematical expressions and these are the mathematical equations I was talking about. ठीक है, तो इसकी मैं बेसिकली बात कर रही थी कि ये जो आपका राइट साइड पे देखें, अगर लिखा हुआ है a plus 0 is equals to 0, so that's an equation. ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इट होल्ड्स फॉर द बोथ डिजिटल लॉजिक्स. कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ वन बाय वन.
अब यहाँ पे जो इन्होंने यूज़ किया है ए बी सी, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस आइडेंटिटी लॉ. तो वेरी फर्स्ट वन वाज आइडेंटिटी लॉ. आइडेंटिटी लॉ में बेसिकली आइडेंटिटी लॉ हमारे पास क्या है कि a प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू a. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ a. a इज़ बेसिकली द इनपुट, और a जो है वो बेसिकली या तो लॉजिक 1 पे होगा या फिर लॉजिक 0 पे होगा. वी डू हैव जस्ट टू पॉसिबिलिटीज़. ठीक है, कैसे? क्योंकि a जो है वो आपके पास डिजिटल लॉजिक है. डिजिटल लॉजिक में या तो a की वैल्यू जो है वो 1 होगी या a की वैल्यू 0 होगी. अब हमारे पास जो आइडेंटिटी लॉ है दैट इज़ a प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू a. सॉरी, इट्स नॉट प्लस. आपने इसको प्लस नहीं रीड करना. दैट्स बेसिकली और. इट्स और ऑपरेशन, इट्स नॉट एडिशन. ठीक है, अगर मैं प्रीवियसली लेक्चर अभी इस लेक्चर में अगर मैंने कहीं पे प्लस इसको रीड किया है, सो दैट्स कंसीडर समटाइम्स इनकरेक्ट. ठीक है, बहुत से टीचर्स प्लस भी रीड करते हैं एंड होता है, बट आई थिंक यहाँ पे जो है आप इसको प्लस रीड नहीं करेंगे. दैट्स बेसिकली द और ऑपरेशन. ठीक है, a और 0 is equals to a. Now let's see if the value of a is 1, then what will happen. अब a की वैल्यू अगर 1 है तो आप क्या करेंगे? देखें, थर्ड लाइन में मैंने उसको पुट किया है 1 और 0. 1 और 0 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1. दैट इज़ अगेन द वैल्यू ऑफ a. अब मैंने इसको रेड के साथ इस तरह से हाईलाइट किया है कि a जो है वो लॉजिक 1 पे है, और हमारे पास आफ्टर आइडेंटिटी लॉ ऑफ और ऑपरेशन वो हमारे पास रिज़ल्ट 1 आ रहा है. इट मीन्स हमारे पास अगैन a की वैल्यू आ रही है. तो आप इसको जनरलाइज करके कह सकते हैं a और 0 इज़ इक्वल्स टू a. कि आप किसी भी डिजिटल लॉजिक का अगर आप और लेंगे 0 के साथ, ठीक है, तो वो आपको वही डिजिटल लॉजिक ही उसी की वैल्यू रीस्टोर हो जाएगी. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट देखें, रेड में जो मैंने हाईलाइट किया a की वैल्यू है 0 और आइडेंटिटी लॉ है a और 0 इक्वल्स a. अब a की वैल्यू पुट कर दें आप तो 0 और 0 दैट इज़ 0. इट मीन्स कि जो a की जो भी लॉजिक वैल्यू थी वही रीस्टोर हो रही है इन आइडेंटिटी लॉ. Clear? So that's clear. Let's move on to the identity law for AND gate. So identity law for AND gate is a and 1 equals a. So that's not that's not the multiplication. That's basically the AND operation. ठीक है? So identity law for AND operation is a and 1 equals a. Now consider if the value, so a must be at any of two logics. या तो a जो है वो लॉजिक 1 पे होगा या फिर a जो है वो लॉजिक 0 पे होगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द डिजिटल लॉजिक. ठीक है, तो अब अगर a लॉजिक 1 पे है तो लेट्स सी कि आइडेंटिटी लॉ किस तरह से होल्ड करता है. सो हियर वी हैव a and 1 equals a. दैट्स आइडेंटिटी लॉ. By putting the value of a लॉजिक 1 पे है तो 1 and 1 equals 1. क्योंकि AND गेट में सारी की सारी इनपुट्स 1 होंगी तो AND ऑपरेशन का जो रिज़ल्ट है दैट वुड बी 1. ठीक है, मूविंग नेक्स्ट, इफ़ a is at logic 0, so what will happen? a and 1 equals a. Putting the value of a, that is basically at logic 0. So 0 and 1 equals 0. And that's restoring the value of a that is at logic 0. अब जो रेड में मैंने हाईलाइट किया वो इसीलिए हाईलाइट किया कि आइडेंटिटी लॉ में पुट करने के बाद वी आर हैविंग द रिज़ल्ट 0. एंड यही 0 जो है वो हमारी a की वैल्यू थी. a जो है वो लॉजिक 0 पे था. इट मीन्स कि आपका ये लॉ जो है दैट होल्ड्स ट्रू. बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है. इतनी सी बात है कि a जो है या तो लॉजिक 1 पे होगा या 0 पे होगा. और आप किसी भी लॉ में ये जो जितने भी टेबल में लॉज दिए हुए हैं
इन पे अगर आप वैल्यूज़ पुट करेंगे सो यू विल गेट द you will get the same result on the left hand side and on the right side of the equation. कौन सी equation? ये बुलियन जो एक्सप्रेशंस है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है, जिसको हमने बुलियन आइडेंटिटीज़ कहा है. ठीक है. Moving next, we are having domination law. Domination law with respect to the OR operation या with respect to the OR gate, वो हमारे पास है a और 1 is equals to 1. कि अगर आप OR ऑपरेशन ले रहे हैं 1 का किसी भी जो है वो लॉजिक इनपुट के साथ, चाहे वो लॉजिक इनपुट 1 है चाहे वो 0 है, रिजल्ट ऑलवेज रिमेन 1. ठीक है. सो हेयर वी हैव इफ़ वैल्यू ऑफ a इज़ 1, अगर a लॉजिक 1 पे है तो मैंने वैल्यू पुट कर दी है. थर्ड रो में आप देखें 1 और 1 इज इक्वल्स टू 1. तो रेड में जो 1 रिजल्ट आया और ऊपर जो a लॉजिक 1 पे है दोनों इक्वल हैं, तो इट मीन्स द डोमिनेशन लॉ होल्ड्स. मूविंग नेक्स्ट, a इज एट लॉजिक 0. So by putting value 0 or 1, the result is 1. ठीक है. Okay. So the next is the domination law of AND operation. अच्छा, जो हमने डिस्कस किया डोमिनेशन लॉ ऑफ और ऑपरेशन, उसमें जो हमारे पास लॉ था दैट वाज a और 1 रिजल्ट्स 1. एंड आप नीचे देखें कि नीचे दोनों के रिजल्ट्स जो हैं वो 1 आ रहे हैं, चाहे वो लॉजिक 1 पे है चाहे वो लॉजिक 0 पे है. ठीक हो गया. इसी तरह से जो डोमिनेशन लॉ अंडर एंड ऑपरेशन है उसमें भी आप देखिए, उसमें हमारे पास लॉ है a एंड 0 इक्वल 0, कि हमारे आप एंड ले लें 0 के साथ. ये तो आई थिंक एक फिंगर टिप्स पे रखने वाली बात है कि अगर आप 0 के साथ किसी का भी एंड ले रहे हैं तो 0 हो जाएगा. जिस तरह मैथ्स में हम करते हैं कि 0 के साथ आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो वो 0 हो जाएगा. चाहे 0 के साथ आप 7 को मल्टीप्लाई कर दें द रिज़ल्ट इज़ 0. चाहे आप 7 लाख को मल्टीप्लाई कर दें द आंसर इज़ 0. ठीक है. सो दैट्स अगैन कि a के साथ आपने लेना है एंड ऑपरेशन, सॉरी 0 के साथ आपने एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है विद a, और a किसी भी लॉजिक, फॉर एग्जांपल a लॉजिक 1 पे है तो आपने 1 एंड 0 लिया, द रिज़ल्ट इज़ 0. इसी तरह a जो है वो 0 लॉजिक पे है तो 0 एंड 0, द आंसर इज़ अगैन 0. ठीक है. तो कोई नहीं, ये जो स्लाइड्स हैं ये आपको बस ऐसे ही लग रही हैं, अदरवाइज़ आई थिंक ये 3 to 4 क्लास के बच्चे को भी अगर ये बात समझाई जाए तो उसको बिल्कुल समझ आ जाएगी कि बेटा आपने क्या करना है कि ये जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं इसमें जैसे आप a की वैल्यू 1 पुट कर दें और 0 पुट कर दें तो वो जो इक्वेशन है दैट होल्ड्स ट्रू. तो इतनी सिंपल सी बात है. ठीक है. इसीलिए मैंने बहुत डिटेल में ये दो मैंने प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ये दो लॉ जो हैं ये डिस्कस कर चुकी हूँ. बट द रिमेनिंग जो टेबल है वो आप लोगों का होमवर्क है, वो आप लोग खुद जो है वो उसको अंडरस्टैंड करेंगे. इसमें से आप कोई सा भी लॉ ले लें. कॉम्प्लीमेंट लॉ है विद रिस्पेक्ट टू और ऑपरेशन एंड विद रिस्पेक्ट टू एंड ऑपरेशन. दैट इज़ वेरी सिंपल कि अगर आप a का और लेंगे a के a नॉट के साथ, ठीक है, सो यू विल गेट 1. लेकिन अगर आप एंड ऑपरेशन के साथ ले रहे हैं सो यू विल गेट 0. ठीक है. इसी तरह डबल नेगेशन लॉ, अगर आप 2 दफ़ा नॉट ले रहे हैं 2 दफ़ा इन्वर्जन हो रही है तो आपके पास वही इनपुट दोबारा रिस्टोर हो जाएगी. ठीक है. द नेक्स्ट इज़ आइडेम्पोटेंट लॉ. उसमें ये है कि a और a अगर आप ले रहे हैं द रिजल्ट वुड बी a. इसी तरह अगर आप a एंड a ले रहे हैं तो दैट इज़ आइडेम्पोटेंट लॉ विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू द एंड ऑपरेशन. ठीक है. इसी तरह नीचे एसोसिएटिव लॉ है एंड ऑपरेशन का भी और ऑपरेशन का भी. इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव, वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देन वी हैव एब्जॉर्प्शन लॉ. ठीक है. एंड देन वी हैव डी मॉर्गन्स थ्योरम. वो भी आपके पास, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ आपको पता ही है. तो सिंपल बुलियन आइडेंटिटीज़ लिखी हुई हैं. दीज आर वेरी सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशंस, दीज आर मैथमेटिकल फार्मूलाज कह लें या मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस कह लें. ठीक है. इनमें जब भी आप, जो आपके पास a, b या c जो है उनकी या तो लॉजिक 0 पे होगी या लॉजिक 1 पे होगी,
आप उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, यू गाइज ईजीली गेट द रिजल्ट्स एज पर द इक्वेशन. ठीक है. Okay, so this was all about this lecture number 8. So in case of any query, in case of any question, you guys may drop your words in the comment section, and you guys may contact us through our contact number, through the email address. Stay tuned, stay tuned, and keep learning, keep growing. We'll see you in next lecture, inshallah. Till then, keep learning.